mark in a drama called Bacha Begum. It's a fantastic character. और अब वो करने जा रही हैं एक ऐसा रोल जो कि I think may be the turning point in her career when she plays a strong woman in the industry who is subject to harassment. I'm talking about Goonj, उनका आने वाला ड्रामा मेरे साथ हैं कोमल मीर. कोमल क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. We've been wanting to have this conversation for a long time, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमने बड़े सही वक्त पे ये टाइम चुना है बात करने का, because आने वाला प्रोजेक्ट is extremely interesting. और पिछले वाले प्रोजेक्ट्स पे बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपने किए ऐसे. एंड इंटरेस्टिंगली यू स्टार्टेड ऑफ एज अ लीड, सो ऐसा नहीं है दैट यू आर अ सपोर्टिंग एक्टर. आपने लीड में अपना काम शुरू किया. You did characters that won you awards. You did good lead characters, trending dramas, बहुत सारे views मिले. And एक range थी, लेकिन लोगों की memory में वो जो है ना राहे जुनून टाइप कैरेक्टर या इश्क है टाइप कैरेक्टर, या अभी जो ए दिल में हमने मलिहा को देखा, वो बेचारी पहली किस से आखिरी किस तक रोती है, तो must have been very exhausting. So एक तो ये कि starting with Goonj itself, how excited are you to take on this character? I think I've been waiting for a script like this for a really long time. And interestingly, when Shazia Baji called me for the project, so the first thing I said to her was कि do you think I'm ready to do a script like this? Yes, because मैं honestly because मैं इतने एक type के characters कर चुकी थी that even if I wanted to do something like this, I still was unsure if I was ready for it or not. Because बस मुझे थोड़ा सा मैं एक बहुत self critical इंसान हूँ, तो मुझे my first reaction was कि do you think I can do this? Because this is a big responsibility. Because the script है, it's based on true events and it's a very heavy topic to be shown on Pakistani television, I feel still. So mainstream, yeah. So मेरा पहला बस यही था कि I don't know if I'm ready for it. But उसके बाद I think obviously Wajahat Bhai had the confidence in me, and Shazia Baji was also like, no, we think you are ready, which is why we're offering you this. बस उसके बाद एक बहुत बड़ी responsibility थी to prove myself. So I'm really nervous. I don't know how I've done. लेकिन अब हो गया है. तो I just hope कि ऑडियंस को अच्छा लगे जैसा भी हुआ है, और वो देखें, और जो मकसद था इस स्क्रिप्ट का, इस कैरेक्टर का, वो पूरा हो जाए. कोमल, बहुत यंग करियर है आपका. आपने पहले कोई 6-7 साल पहले ही शुरू किया इंडस्ट्री में काम, एंड यू मूव फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची. आपकी फैमिली भी साथ मूव हुई और आपने काम करना शुरू किया. तो आप कह रहे हो ये बहुत चैलेंजिंग था, तो अभी तक क्या चैलेंजेस नहीं रहे? बाकी were there challenges in your career? Challenges, yes, there were a lot of challenges. क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से तो आप नहीं आ रहे. नहीं, बिल्कुल भी दूर तक नहीं. दूर तक नहीं. Challenges, I think मैं पता है जब भी अपने challenges discuss करती हूँ with my contemporaries या ऐसे within the industry, तो लोग मुझे कहते हैं ये कोई challenge नहीं था. Really, like so they really disregard my challenges, but I still feel कि मेरे हर एक की अपनी journey होती है, right? And just because I started with the lead character doesn't mean that I didn't, have those challenges. My struggle was that I was coming from a background which had nothing to do with the media industry, okay? And I was a very ambitious kid when I started. Yes, I never dreamt about becoming an actor. मुझे वो कभी बचपन के मेरे ख्वाब नहीं थे कि मुझे एक्टर बनना है. लेकिन of course मैं जिस एज में इंडस्ट्री में आई थी, वो I was still very impressionable. So when I came and I started working, I started loving it. And that's when I found my love for acting, and तो मुझे curiosity हो रही है कि how did you come into it? And of course काफी देर हो गई आप बात कर चुके हो, but I still want to know. I've told this a million times. I'm sure. But so I was in Islamabad, and so there's this director जिन्होंने producer Janan produce की थी. उन्होंने हम TV moved to Islamabad. They moved their production to Islamabad, and they were looking for new faces. So he actually knew my khala, and he knew me also. So he sent my pictures along with other people's portfolios as well, without even telling me or anything.
So Mahesh bhai, MD में जो होते हैं, he then called me, messaged me through somebody in the office कि you know you have this audition lined up, इस डेट को इस टाइम को, तो प्लीज कम. मैंने वो मैसेजेस पढ़े ही नहीं. मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों नहीं पढ़े. मैं सोई हुई हूँ, मुझे कॉल आती है, एंड आई पिक अप, एंड कोई खातून थी, मुझे कहती हैं कि आपका ऑडिशन था, आप आई नहीं. मैंने कहा कौन सा ऑडिशन, क्या बात कर रहे हैं आप. तो आई लिटरली थॉट इट्स अ स्कैम, बिकॉज इस्लामाबाद में तो कुछ नहीं होता. यू नो देयर आर नो प्रोडक्शन हाउसेस. उस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं थे. So I was like, this is a scam. इस्लामाबाद में तो कुछ मुझे पागल बना रहे हैं, पता नहीं कौन है ये. But then फिर उसने मुझे फोन पे महेश भाई से बात करवाई. महेश भाई was like कि मैं MD प्रोडक्शन एक चीज है, आपने पता नहीं सुना ही नहीं सुना, आप गूगल करें, हम न्यूज का ऑफिस है, गूगल पे आ जाएगा, तो आप किसी के साथ आ जाओ बेशक. But I googled. And how old were you at that time? I think I was 18, 19. Okay. Yeah. So I googled हम न्यूज का ऑफिस, and फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि हम न्यूज है, ये तो हम टीवी तो नहीं है. तो ये हम न्यूज में टीवी का क्या मतलब, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. मतलब अच्छी बात है, स्काउटिंग वो इस तरह करते हैं, टैलेंट वो करते हैं. Yes. I went in, I gave the audition. I went with my mother. I gave the audition. महेश भाई खुद बैठे हुए थे. मुझे कुछ एक्टिंग का नहीं पता था. They gave me this scene, एक स्क्रिप्ट, रैंडम स्क्रिप्ट में से एक सीन. मैंने सिर्फ उर्दू बोल दी. मतलब आई जस्ट रिमेम्बर कि मैंने बस कैमरे में देखे वो सीन पढ़ दिया था. एंड देन उसी वक्त ही कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड ही वाज लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आप हमारे साथ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में है, और ये प्रोजेक्ट है, और ये ब्ला ब्ला ब्ला. और मेरा पहला क्वेश्चन यही था, मैंने कहा मैं लीड कैरेक्टर में, मैं हीरोइन हूँ ना. ही वाज लाइक हाँ आप लीड हैं. मैंने कहा बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए. दिस वाज लोग क्या कहेंगे. या दिस वाज लोग क्या. सो लोग क्या कहेंगे हैपेंड इस तरह से. और उसमें द एंटायर कास्ट वाज न्यू. एवरीबॉडी वाज फ्रॉम इस्लामाबाद. सब ही टोटल न्यू थे. सो वो एक ऐसा फील हुआ था कि ट्रेनिंग थी एक तरह से. क्योंकि एक होता है ना कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है और आप किसी नोन लोगों के साथ काम करें तो आपको और एक्साइटमेंट होती है कि यार मैं रोज सेट पे जा. वो मेरे लिए थोड़ी एक्साइटमेंट डाई डाउन कर गई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रोजेक्ट ओनली, बिकॉज एवरीबॉडी वाज न्यू. सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, बट आई स्टिल एंजॉयड the process. I still enjoyed it, even though उसमें भी मुझे बहुत रोना पड़ा था, but I still enjoyed it, क्योंकि मैं पहली दफा इतना रो रही थी. और मैं हमेशा पूछना चाहती हूँ कि ये बहुत exhausting नहीं होता रोना? बहुत ज्यादा. एक पॉइंट पे तो like I was literally done, like I was like मुझसे नहीं. और क्या खुद से रोना आता है, आंसू निकलते हैं खुद से भी होता है, but then because you have to cry so much, and like when you're in this scene and you're crying, even आप अगर खुद से भी रो रहे हैं आपकी भी बस हो जाती है. बट देन द डायरेक्टर टेल्स यू और हाँ बस अभी आंसू गिरा दो. हाँ. सो इतना आप नेचुरली भी नहीं रो सकते. तो फिर आपको विक्स भी लगानी पड़ती है, फिर आपकी आंखें भी खराब होती हैं. फिर आपको माइग्रेन्स भी होते हैं. और मेरा हाल है लीडिंग लेडीज को ठीक ठाक रोना पड़ता है. बहुत रोना पड़ता है. बहुत. और ए दिल ने तो बिल्कुल हदें तोड़ पार कर दी रुलाने की. बेचारी मलिहा को रुला के अब तो आदत हो गई है रोने की. अल्लाह ना करे किसी को रोने की आदत हो, लेकिन आते में टीवी वालों को बदलने की जरूरत है. क्योंकि उम्मीद है कि गूंज में जो आपका किरदार है उसका रोने वाला कैरेक्टर नहीं, वो तो बिल्कुल. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द कैरेक्टर. So Zarnab, my character name is Zarnab. Zarnab is I would say कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो I could not imagine myself in that character for the first time. क्योंकि इतनी देर से इतनी ब्रेन वॉशिंग हुई थी कि तुम वो लड़की हो जिसने रोना है. बिल्कुल. और दूसरी ये भी बात कि जरनाब का जो कैरेक्टर था, मुझे पढ़ के स्क्रिप्ट ये लगा था कि you know this is, I can imagine a Saba Qamar doing it. Right. I can imagine a Yumna Zaidi doing it. I can imagine, you know, actresses like these doing it, who have done such characters and who are strong enough to do such characters. I couldn't imagine myself doing that character. And then I also conveyed this to the director, and then what he told me actually made me do it. He was like, hey, yes, these actresses can do it, but I want to try it with you because I want to show a vulnerable girl. I want to show a petite girl, a regular girl who will have to be strong when she faces